अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट सरोश और आज के एपिसोड की गेस्ट है नवाल हैदर, समवन हु हैज़ बीन एक्टिवली वर्किंग टू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। आपने उनको मार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी देखा है टू टॉक अबाउट हीट वेव्स और उसके अराउंड इंपॉर्टेंट क्लाइमेट कॉन्वर्सेशंस में आपसे इंगेज होते हुए भी देखा है। सो लेट्स वेलकम हर बैक। Thank you so much, Nawal, for being here. Assalamu alaikum. Walaikum Thank you assalam. for having me. I'm glad. So let's talk about how long have you been working towards creating climate raising content और आप advocate कर रही हैं climate के related concerns को, तो अपनी journey के बारे में बताएं. I think I've been interested in climate change for most of my life right now. जी. I think it started when I was quite young and I started learning like how my parents or grandparents कहते थे कि लाहौर में इतनी गर्मी कभी नहीं होती थी और ये अब हुआ है और ये पता नहीं क्या हो रहा है और ये और वो और मैंने उसके बारे में आई लर्न अबाउट दैट और आई थिंक मेरे environmental issues का काइंड ऑफ कंसर्न हमेशा लाहौर सेंट्रिक था कि ये हमारे स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, लाहौर में स्मॉग क्यों इतनी है, ये क्या हो रहा है. और आई थिंक उसके बारे में आई वांटेड टू लर्न और मैं काफ़ी देर के लिए आई वांटेड टू स्टडी एनवायरमेंटल साइंस, आई वांटेड टू बी एन इकोलॉजिस्ट. लेकिन फिर आई लर्न कि बहुत ज़्यादा इस दुनिया में इकोलॉजिस्ट हैं और वो काम कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा. तो फिर आई थिंक देन आई स्टार्टेड वांटिंग टू वर्क मोर विद ऑर्गेनाइजेशंस. And I remember I interned थोड़ी देर के लिए at Mati. Yes, you did. Which was a very nice, very good experience. And उसमें I remember the series of videos, the 2 videos about water and heat waves. जी. And I remember उस वक्त I felt like कि ये थोड़ी useful चीज़ है कि you can use kind of what you call climate awareness content kind of as a means to an end to establish kind of meaningful change. Yes. So I think it really started and it really kind of took off for me उस तरह जब I interned for the National Assembly और वहाँ पे I was at the SDG task force. What is that? So the Sustainable Development Goals, you know about the UN Sustainable Development Goals, उसमें at the National Assembly in Islamabad we have a task force dedicated to it. Okay. So at the time this was headed by Ma'am Rumina Alam. जी. Who is currently the climate minister. Or I was interning there and I worked there for a while or whenever anything would come up, I would always try to do something in climate. कि हम climate की policy पे बात करें और हम climate, because एक है sustainable goal, right? तो उसके ऊपर I'd always talk and then eventually they needed people to go out to talk to media और ये सारे काम. तो I volunteered. And I became the climate action ambassador for students and young people. So I think that's when it really started. Or I started working with काफ़ी different organizations or NGOs or other, and then climate ministry itself, obviously. So I've been doing that for a few years now. Yeah. And right now you are pursuing your undergrad degree in economics. जी. Tell me, how is this degree relevant with ये जो advocacy और awareness efforts होते हैं climate के अंदर, क्या connection है? I mean, fundamentally, पाकिस्तान में climate change, climate crisis एक economic problem है, fundamentally. क्योंकि हमारा मसला ये नहीं है कि, a flood has come. हमारा मसला ये है कि a flood has come and अब we can't deal with it. हमारे पास कोई mechanisms नहीं है, right? So it's about fundamentally कि all of these जो climate के मसाइल हो रहे हैं, we have no way of dealing with them because we are, a member of the global south. We are a lower middle income country and हमारे government के पास resources नहीं है और हमारे पास fundamentally resources नहीं है to deal with all of these different effects, right? हम एक agrarian economy है, right? अब मसला ये कि climate change का मतलब ये कि agriculture बहुत affect होता है लेकिन the impact this is going to have on our lives, हमारी ज़िंदगियों पे, this is not fundamentally a climate का मसला, this is an economic मसला और इसको solve करने के लिए हमें economic steps लेने पड़ते हैं. I think दोनों in the global north जो हम कहते हैं, in the first world and the western world and वो सारे
decarbonization की बहुत बात होती है, राइट? जी एंड हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि आप ट्रीज प्लांट करोगे एंड आप एक सोलर पैनल लगाओगे एंड यू कैन पुट अ विंड फार्म एंड आप ये सारी चीज़ करोगे एंड देन क्लाइमेट चेंज सारे एनवायरमेंटल मसले विल गो अवे, बट दैट्स नॉट इट डजंट वर्क दैट वे. आपको पॉलिसी चाहिए होती है एंड फंडामेंटली आपको इकोनॉमिक्स का देखना होता है, राइट? अब मैं यूएस में पढ़ती हूँ तो आई टेक एन एग्जांपल ऑफ द यूएस में अभी कोल माइनिंग की इंडस्ट्री है, राइट? एंड इट्स क्वाइट सक्सेसफुल. एंड यूएस में रिन्यूएबल्स इतने नहीं हैं. And the reason for that fundamentally is economics, right? Coal mining pays very well. It's very important rural communities के लिए. So politically it stays. क्योंकि kind of our economy is a political economy, right? And politics is all about economics. And renewables इसलिए नहीं काम करते क्योंकि, for example, countries that have adopted renewables, right? Germany, उन्होंने इतने wind power का harvest करने की कोशिश की है. And then कई साल बस इतनी विंड नहीं थी. There was just less wind, right? So things like that are not really viable. You have to think about things like nuclear energy, right? For example. It's like all of these things, all of these problems that we have to be thinking about economics to solve them. क्योंकि अगर आपने एक reasonable quality of life जीनी है, आपने एक high quality of life जीनी है पाकिस्तान में कहीं भी, तो इसका मतलब ये आपके emissions बहुत high हैं. राइट अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जब गर्मी होएगी एंड देयर विल ऑलवेज बी गर्मी, राइट? अगर क्लाइमेट चेंज होए या ना होए देयर विल ऑलवेज बी गर्मी. देयर विल ऑलवेज बी इट विल बी टू कोल्ड एंड यू नीड हीटर्स या गैस या इलेक्ट्रिक, राइट? यस तो उसके लिए देयर इज गोइंग टू बी एमिशंस एंड इकोनॉमिकली स्पीकिंग वी हैव टू फिगर आउट हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट मोर एफिशिएंट, how we are going to make the emissions less. और कि ये कैसे करें without compromising on people's lives, right? यस क्योंकि पाकिस्तान में हमारे emissions बहुत लो हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, right? हमारे emissions लो इसलिए हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ quality of life नहीं है, क्योंकि for most people quality of life बहुत बहुत लो है and west के emissions बहुत high हैं, but that's not a मतलब moral evil. ये एक अच्छी बात है कि उनके लोग हमारे लोगों की तरह सफ़र नहीं कर रहे, राइट? इफ़ यू आर टू हैव अ पॉपुलेशन जो हमारी है 250 मिलियन पीपल, ठीक है, उनको अगर आपने खाना भी देना है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान भी देना है, तो इसकी एमिशंस बहुत होंगे क्योंकि एग्रीकल्चर के एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं. प्रोड्यूसिंग मीट के एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं. प्रोड्यूसिंग इवन वेजिटेबल्स लाइक एमिशंस चाहिए होते हैं, राइट? Then we have to figure out how we're going to maneuver all of these things. और फिर पाकिस्तान के अंदर स्पेशली और इवन ग्लोबली बहुत ये पुश है कि हमने ये करना है और ये करना है और ये करना है, और ठीक है, दैट्स ऑल फाइन, लेकिन पैसे किधर से आएंगे? पैसे कौन देगा, राइट? एंड पाकिस्तान में काफ़ी लोग कहते हैं हम टैक्स लगाएंगे, हम इंडस्ट्री में टैक्स लगाएंगे, हमारे इतने अमीर लोगों को सारे टैक्स नहीं करते और ये और हम वो ख़त्म कर देंगे. कैसे? टैक्सेस ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत बहुत हाई हैं, लेकिन हमारी टैक्स बेस ज़्यादा नहीं है, और टैक्स बेस फिक्स करने के लिए आप इस तरह नहीं कर सकते. मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है. आपको कम्प्लीटली हमारे सिस्टम्स बदलने पड़ेंगे और आपको ये अप्रोच एंड क्लाइमेट चेंज का कुछ भी नहीं होने वाला है इस मुल्क में अंटिल हम अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को नहीं डील करते. Hence the degree, it all ties up. Yeah. Also, you're currently working with the Ministry of Climate Change. जहाँ पे आप you prepared the Pakistan delegation for COP29, right? तो सबसे पहले, to put it simply, tell me what COP29 is, also for anyone watching who want to know more about it, and also tell us कि ये opportunity क्यों ली? Why this? Why did you feel like you had to play a role here? I think, okay, so COP is Conference of Parties. It's called COP29 because ये 29th साल है. Yes. COP is basically the biggest platform for climate action और climate change के बारे में बात करना, climate funding के लिए, climate projects के लिए basically. हर साल एक दफ़ा होती है, and this year I'm working with the Ministry of Climate Change क्योंकि मैं उनके लिए काम करती हूँ, मैं उनकी student ambassador हूँ. But basically इसलिए क्योंकि COP पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, right? COP is a very very big opportunity पाकिस्तान के लिए, right? क्योंकि
अगर हम डेलीगेशंस भेजते हैं, हम डेलीगेट्स भेजते हैं, तो वहाँ जाके दे कैन गेट फंडिंग पाकिस्तान के लिए. And essentially that is the point of going to COP as a Pakistani. कि आपने पाकिस्तान में पैसे लाने हैं. Yes. आपने ये जो सारे क्लाइमेट फंड्स अवेलेबल हैं उनसे लाने हैं कि हम फ्लड रिलीफ पे काम करें, हम एग्रीकल्चर क्लाइमेट अडेप्शन पे काम करें, क्लाइमेट मिटिगेशन पे काम करें, राइट. Yes. तो इट्स बिकॉज क्लाइमेट फाइनेंस में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, राइट, एंड देयर गोइंग टू बी मोर in the coming years. So that's why I was always extremely interested in working with COP कि हम prepare करें COP delegation को. हमारे जो COP simulations हो रहे हैं, even on their own they're a really really useful चीज़, क्योंकि basically हम ये कर रहे हैं कि हम young लोगों को ले रहे हैं, including very young people, you know, we have people that are like 8, 9, 10 years old even. अच्छा, बहुत young. जी, and also of course university students. Yes. और हम उनको like the one I just did in Lahore, जी. उसमें I was a moderator and a judge. तो उसमें we took 25 people और हमने 5 के groups बनाए, Okay. right? कि आप 5 लोग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आप 5 लोग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप 5 लोग एकेडमिया को, आप CSOs, आप यूथ फॉर एग्जाम्पल, राइट. Yes. और फिर हमने उन्हें कहा कि ठीक है अब एक क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाएं. हमने वेरियस टॉपिक्स वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है. अब आपने अपने खुद प्लान बनाए और आपने निगोशिएशन शुरू करने हैं. Okay. तो इमीडिएटली हमारी जो अभी हुई थी, इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. इमीडिएटली जो गवर्नमेंट की टीम थी, दे वर वेरी गुड एंड दे स्टार्टेड सेइंग कि देखें सारे लोग गवर्नमेंट को कह रहे हैं गवर्नमेंट की फॉल्ट नहीं है, असल में ये यूथ की फॉल्ट है, असल में ये इंडस्ट्री फॉल्ट, असल में ये CFOs की फॉल्ट है, असल में ये सारे वो. एंड फिर दिस बिग आर्ग्यूमेंट स्टार्टेड कि नहीं ये क्लाइमेट चेंज तो सारा वो है, एकेडमिया कुछ नहीं करती, नहीं एकेडमिया बहुत यूजफुल है, ये सारे वो डिस्कशंस. एंड फिर दे स्टार्टेड नेगोशिएटिंग. Okay. तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें आर रियली रियली इम्पैक्टफुल ऑन यंग पीपल, मच मोर देन थिंग्स लाइक कि आप जाएं और आप एक ट्री प्लांट करें. आई मीन ट्री प्लांटिंग्स आर गुड, मैंने ट्री प्लांटिंग्स भी की हैं, Yeah, of course. बट इट्स व्हाट गिव्स यू दिस रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ के चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और आप सिंपली थ्रू मतलब डिज़ायर और वाइब्स के थ्रू आप नहीं काम कर सकते. यू नीड एक्चुअल कॉन्क्रीट पॉलिसी, यू नीड एक्चुअली वर्क विद थिंग्स. एंड देन इट वाज सो कॉप सिमुलेशंस एंड हम अब एक कोयटा में भी कर रहे हैं, Okay. एक कराची में भी होएगी, Okay. और आई बिलीव एक पेशावर will also be here, but I don't know if I will attend that. तो इसमें से basically people who do very well, we send them to the Islamabad की COP simulation. Okay. From all over Pakistan लोग आते हैं और वहाँ से वो select होते हैं COP के लिए. Okay. And through this experience, a lot of people वहाँ मतलब knew nothing about climate change or वो a lot of very young, even educated people from prestigious universities, big universities. We had people from Punjab University and Canade who didn't know much at all about के process कैसे काम करता है, right? तो they have to then think about के अगर industry ने realistically speaking climate action में involve होना है तो उनको profits चाहिए. तो हमें systems बनाने पड़ेंगे जिसमें industry profit कर सकता है and बहुत ज़्यादा profit होए, but they're also doing good, right? Youth को ये सारी considerations हैं. They want education, they want financial opportunities, they want this, they want that, and उसके साथ you have to work with climate action, right? Yeah. तो ये सारी चीज़ें हैं. I think COP simulations can be really really useful. Yeah. I would also want to know कि आपने जिस तरह you brought up COP simulation जो कि ये past 2 days to be clear September 24 and 25 में ये 2 दिन में पंजाब में हुई है. जी. Right, so you were also a part of it. You mentioned it yourself कि आपने moderate किया. So this session was like with Hania Imran, Uzma Yaqub, Sahar Suhail. So all of them were there. मैं जानना चाहूँगी कि इस particular session में like what were some of the important points जिनको raise किया गया particular to obviously climate change that you feel the need कि okay I would like to bring it up. So this was the panel discussion we had before the simulation. Okay. और it was very eventful, बहुत interesting था. उसमें हमने basically ये किया था कि I wrote 3 questions Okay. for each person there कि आप
स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करें कि आप एक हनिया इमरान फॉर एग्जांपल वो एक एक्टिविस्ट है कि Yes. एक्टिविस्ट्स क्या कर सकते हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए पाकिस्तान में. ओके और फिर एक थी उज़मा याकूब जी. मैम, वो एक NGO हेड करती हैं. हमने उनका NGOs क्या कर सकते हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए. और फिर थी साहर, वो एक PhD हैं और वो अब एक डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हैं. तो ये जो एकेडमिया और उसका इंटरसेक्शन है ये क्या कर सकते हैं पाकिस्तान इंटरेस्टिंग. में. तीनों डिफरेंट. जी. या तो जो our young activist who went to COP pehle as well talked a lot about how well they all agreed on one thing which is कि ये fundamentally policy चीज़ है. आप इसको सिर्फ क्लाइमेट और साइंस के लेंस थ्रू नहीं देख सकते. ये एक पॉलिटिकल मैटर है, ये एक इकोनॉमिक मैटर है पाकिस्तान के लिए. ओके Right. But for example, the activist who spoke was talking about how ये सारा system है लेकिन उसके side भी है. So she's talking about the I believe it's called anti-COP जो उन्हीं दिनों हो रहा है, but it's a group of activists and they're protesting COP. ओके Right. जी. Because they say oh ये fossil fuels involved है, industry involved है, ये सारे हैं. And how young activists, she's like she started her own organization है ये सारा वो. And के young activists पाकिस्तान के अंदर क्या कर सकते हैं, she talked about that. And then मैम उज़मा talked about development sector का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है in her view अच्छा कि वो इस तरह की considerations लाते हैं जो government के अंदर और activists और bureaucracy और ये सारे में नहीं होती. तो things like gender or climate change जो ये connection ज़्यादा मतलब isn't really made a lot. But for example, because मैम उज़मा works in बलोचिस्तान and वो मुझे बता रही थी कि जब floods आए थे बलोचिस्तान में तो child marriage के rates increased a lot. ओके क्योंकि जब इस तरह का crisis situation आता है तो लोग बच्चियों की शादी कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि number one, this one child will be a burden on us. यस एंड और कि हम इसका फ़ायदा कर रहे हैं, इसकी शादी करें अब someone else will take care टेक of केयर her. ऑफ इट. Right. तो ये साइलेंस. तो all of this work जो बलूचिस्तान में हुआ है about ending child marriage, right, यस is all undone by events like this. और natural disasters जो पाकिस्तान के अंदर होंगे, they will increase. We will see more things like this. एंड उसमें आप जितना भी मतलब सोशल एक्टिविज्म करो, गवर्नमेंट जितने भी लॉज पास करो, whatever, अगर इकोनॉमिक कंडीशंस ये हैं कि लोगों को लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज़ व्हाट दे विल डू. राइट. यस मतलब economics is all about incentives. तो she talked about that example. She talked about a lot of other things. कि for example एक जेंडर की कंसिडरेशन उस तरह नहीं होती. दैट्स वेरी वेरी बिग थिंग स्पेशली इन पाकिस्तान जब हम इस तरह की बात करते हैं. बिकॉज जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट डिज़ास्टर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे सबसे वल्नरेबल, सबसे रूरल, लो इनकम पॉपुलेशंस को अफेक्ट करते हैं. और उनमें विमेन और बच्चे आते हैं यस दोनों. यस विमेन एंड चिल्ड्रन, विमेन और बहुत यंग बच्चे. बहुत. यस Right. यस तो ये इतना कंसिडरेशन नहीं है, ये इतनी कंसिडरेशन नहीं है. और फिर के फॉर एग्जांपल जब द मोस्ट रीसेंट 2022 मेगा फ्लड्स, राइट, व्हेन द गवर्नमेंट फाइनली सेंट एड और दे सेंट टेंट्स और ये सारी चीज़ें, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वहाँ पे औरतें भी हैं एंड दे ऑल्सो नीड स्पेसिफिक हाइजीनिक प्रोडक्ट्स कि बच्चे नेटल केयर, प्रीनेटल केयर एंड देन मैटरनल केयर. तो इस तरह की सारी considerations and she was talking about how she felt NGOs were the ones and CSOs, civil service, civil society organizations push करती हैं. But also कि again fundamentally ये एक policy की चीज़ है, right? यस वो बात करी थी कि जब वो स्कूल्स जाते हैं, वो स्कूल्स में क्लाइमेट का काम करने की कोशिश करते हैं, राइट. तो स्कूल्स कहते हैं आप ट्री प्लांटिंग ड्राइव कर दें, आप जाएं ये गंदा नाला है इसको साफ़ करा दें बच्चों से, ठीक है. तो वो कहते हैं हाँ हम ये तो कर सकते हैं, बट हम ये क्यों नहीं करते कि हम बच्चों को सिखाते हैं कि ये नाला क्यों गंदा है, राइट. ये एक पॉलिसी डिसीजन थी कि दिस वुड रिमेन दिस वे, कि आपकी कम्युनिटी इस तरह है, राइट. एंड कि आप पॉलिटिकली इंगेज हो सकते हैं लोकल गवर्नमेंट में, आप चीज़ें कर सकते हैं बियॉन्ड जस्ट
वंस आप जाएं और नाला साफ करें, right? Yeah, that's true. मुझे इससे याद है, this was like almost 2 years ago. We had Dr. Nosheen on our podcast और वो बात कर रही थी चुंगी अमर सिद्धू के बारे में, उस इलाके के स्पेसिफिक जो लाहौर के आउटस्कर्ट्स में है, एंड उसमें शी ब्रॉट अप कि किस तरह उनका पानी गंदा है, बट उनको पता नहीं, बस वो कहती हैं ये काला पानी है या ये गंदा है या इससे स्मेल आती है, थिंग्स लाइक दैट, बट दे डोंट नो कि क्यों है, बस उनको पता है कि हाँ ये गंदा है, बट उनके पास चॉइस नहीं है. सो जब उन्होंने ये शुरू किया कि बच्चों को इस तरह एजुकेट करें कि उनको बताएं कि ये क्यों है ऐसे, सो इट जस्ट लाइक रिमाइंडेड मी ऑफ दैट, एंड जी, आई फेल्ट द नीड टू ब्रिंग absolutely. इट अप इवन दो ये कितनी पुरानी बात मैं कर रही हूँ. This जी, was like absolutely. almost 2 years ago, though, but it hit me. Yes, absolutely. you're absolutely right about that. Yeah, I mean, again, the thing about climate change, and we were talking about this पहले भी, is कि the biggest effects of climate change are not from climate change itself. It is कि ये crisis जो है exacerbate करता है हमारे जो पहले मसाइल थे, क्योंकि हमारे water का जो crisis है fundamentally climate change इसको exacerbate कर रहा है, लेकिन हमारा water crisis एक water management crisis है. Yes. अब देखें क्लाइमेट चेंज होए ना होए, अगर आप अपने सारे पानी के जो पाइप्स हैं वो आपके सूएज के पाइप्स के साथ मतलब बिल्ड करें एंड यू कीप इट दैट वे, एंड फिर आप अपना सारा ग्राउंड वाटर पंप करें और कोई रिचार्ज ना करें, तो आपका वाटर क्राइसिस तो होएगा, राइट? Sahar, who is a PhD in environmental sciences, also had a really interesting answer to the question. वो बता रही थी कि obviously हमें दोनों चाहिए, right? We need to be thinking about science. We need to be thinking कि हम processes को efficient कैसे करें. एंड हमने बहुत सेशंस किए थे पहले, राइट? कॉप सिमुलेशन पहले हमने सारा एक्सप्लेन किया, क्लाइमेट फाइनेंस ये होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज ये होता है, हीट वेव्स इसलिए होते हैं, ये वो यू नो पॉलिसी ये है, पॉलिटिक्स ये है, इकोनॉमिक्स ये है. और फिर जब हमने सिमुलेशंस की, जो हॉल मैंने मॉडरेट किया था, उसमें द बिगेस्ट थिंग दैट केम अप वाज कि हमारी इंडस्ट्रीज एफिशिएंट नहीं है, राइट? और ये अगर हम थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस इंडस्ट्रीज को एफिशिएंट करें तो पोल्यूशन कंपैरेटिवली स्पीकिंग बहुत कम होएगी अभी की निस्बत, राइट? और इसमें इंडस्ट्री का भी फ़ायदा है क्योंकि फिर ज़्यादा एफिशिएंट होती है, फिर पैसे कम लगते हैं. लेकिन इसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको एकेडेमिया से, आपको रिसर्च से, आपको गवर्नमेंटल हेल्प चाहिए होती है, आपको इंडस्ट्री की हेल्प चाहिए होती है. तो इट्स ऑल ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस जो अभी पाकिस्तान में उस तरह नहीं है, लेकिन हो सकते हैं अगर हम मतलब कुछ करें, राइट? लेकिन क्लाइमेट चेंज का कुछ नहीं होने वाला है अगर हम अपनी बाकी प्रॉब्लम्स का भी ना कुछ करें, राइट? कोई भी, नो वन कैन कम आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड एंड सेव अस. कोई हमें बचाने नहीं वाला, राइट? Yeah, that makes. I want to talk a little bit more about COP29. एक तो पहले I would want to say कि it sounds like ये जो COP simulation है, इसका purpose is not just to educate, but it's like a space for those जो कि climate who actually care to do or take steps about the climate. So they get together and they have these important conversations, चाहे वो research related हों, डेवलपमेंट के सेक्टर में हो, एनीथिंग. एंड इट साउंड्स लाइक एट द सेम टाइम कि सब अगर मिलके काम करें तभी कुछ ना कुछ हो रहा है. of course. हर किसी ने कोई ना कोई रोल अदा करना है. इट्स नॉट जस्ट कि एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है या एक बॉडी रिस्पॉन्सिबल है. इट साउंड लाइक हर कोई थोड़ा थोड़ा करेगा तो तभी थोड़ा थोड़ा कुछ हो सकेगा. जी, right? Absolutely. Yeah. I just want to talk about what do you think, like what is the expected outcome of COP29? I would want to know. It could be as simple as, I know you mentioned it, we need the money. आपने शुरू में ही mention किया था, right? Yeah, you emphasized on that. But I would want to also know do you think besides this there should be कुछ ऐसे मसाइल होने चाहिए जिनको brought up किया जाए at COP29? Is that going to make a difference? I think yes. I think there is a push from a lot of countries, not just Pakistan, Bangladesh, a lot of countries that are ज़्यादा affected climate change से. Okay. लेकिन जो खुद lower income, let's say मुल्क हैं, कि एक फॉर्म हो ग्लोबल रेपरेशंस का
Okay. कि जो मुल्क ज़्यादा एमिट करते हैं, राइट, जो अमीर ममालिक हैं, Yes. वो फंड करें for the large scale projects for climate mitigation and adaptation in Yes. countries like Pakistan. Or I think is tarah ki push can be very, very useful. Right. But so I think funding ke andar bhi there's more. But also ke hum obviously emission देखें climate action में fundamentally दो चीज़ें हैं, ठीक है, mitigation और adaptation. Yes. Mitigation ये है कि आप climate change को prevent करें, right? आप emissions अपनी कम करें. जी. इसके अंदर there is a lot of renewed interest in nuclear energy, जो I mentioned पहले, right? Nuclear energy में, so during the 1970s and 80s, there was a lot of interest in nuclear energy. लेकिन there were some small scale disasters, or Chernobyl, obviously, Yes. was the incident. Just say that was all ended. And there was also, I want to say this, a lot of environmentalist push against nuclear energy. Even though अगर दुनिया ने न्यूक्लियर अडॉप्ट की होती 1975 में, तो अभी ये क्राइसिस नहीं होता, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स. एंड अगर हम चीज़ों को इलेक्ट्रिक बनाएं और फिर हम नॉन कार्बन सोर्सेज से उनको चार्ज करें, जी. तो फिर that doesn't have an impact on the environment and on the earth, right? So there's interest in things like that and prevention. There's a lot of new things that are being studied. Yes. There's a lot of push for electric cars, right, for example. But फिर adaptation में, क्योंकि adaptation में ज़्यादा, देखिए mitigation में ज़्यादा अमीर मुल्कों की बात है, adaptation में ज़्यादा गरीब मुल्कों की बात है, ठीक है. तो adaptation में आती है जो climate disasters हैं, उनका हम कुछ करें, sea level rise का हम कुछ करें, right? तो काफ़ी मुल्क हैं जो literally like 50% could be underwater अगर the sea levels rise at the rates that they could potentially, right? And then also it's not just कि sea levels rise, it's कि sea levels rise क्योंकि ice ने melt की है in the Antarctica, but also in places like Pakistan, right, in Nepal. और यहाँ पे it's one of our biggest water sources. The water system that is kind of powered by ये glaciers जो हैं. जी. तो आपको disasters का सोचना पड़ता है, but आपको also agriculture का सोचना पड़ता है, right? अगर हमारे पास ये agrarian economy है, अगर हमारे पास ये एक abundance है of fruit and vegetables and protein and so on, right? तो ये इसलिए है क्योंकि for the past 10,000 years we have had मतलब relative stability कि जब नवंबर आएगा ये होएगा, जब दिसंबर आएगा तो बारिश होएगी, for example. That's not good, but like a random, right? फिर जनवरी में आप ये प्लांट कर सकते हो, फिर आप ये सीजन शुरू करते हो, and so on and so forth, right? तो ये जो स्टेबिलिटी है, इससे ही आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी बनती है, इससे ही एग्रीकल्चर होता है. अगर हम ये स्टेबिलिटी लूज़ करते हैं, जैसे हम लूज़ कर रहे हैं अभी, तो इसका मतलब ये है कि then you cannot go on the way you did पहले, right? तो there's kind of these two things happening simultaneously, mitigation और adaptation पे बात. I would want to know, even though you have already shared कि future में यही है कि अभी right now for you it's co-population जो क्वेटा में है, but अगर मैं in the longer run पूछूं, do you have any plans कि how would you want to continue this journey of yours? Do you have anything? Have you thought of anything? I know life is very unpredictable like that. आप in a few months time आप कुछ और आ जाता है mind में. The world is also rapidly changing, so you really don't know. But do you have anything in mind? I think multiple चीज़ें हैं. Yeah. एक तो for the next few years of my life, I want to work with the climate ministry. Yes. Pakistan में. जी. But in kind of whatever capacity I can. Yes. Because I think abhi that is the best route for me कि I can do the most meaningful things. जी. लेकिन in the future, I think green technology में मेरा बहुत interest है.
Why? Because I think realistically speaking, nothing is going to change unless you have viable alternatives that are also profitable. Right? Yeah. I think कि ये because actually cops English पे भी ये बात हो रही थी by some of the more activist faction there कि ये सारा है क्योंकि human greed है, right? अब शायद वो human greed है, शायद वो human drive to innovation है, right? Whatever you want to call it, लेकिन ये चीज़ है, and I don't think this is going to change ever, at least हमारी ज़िंदगी में, right? And I think fundamentally अगर हमने climate change की बात करनी है, but especially पाकिस्तान में बात करनी है, even if I'm not in Pakistan physically, even if I'm living somewhere else, I think अगर green technology की funding की बात करें, right? तो इस तरह की चीज़ें नंबर 1 emissions को कम करेंगी, I think more than anything else. I think it's the most viable path forward. लेकिन also के adaptation में, for example, agriculture में, there's so much work for climate resistance agriculture, climate resistant infrastructure जो हमने बनाना है, ठीक है, एंड ज़्यादातर ये चीज़ें जो हैं अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, इनकी आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इनको फंडिंग चाहिए, इनको रिसर्च चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो आई थिंक दैट वुड प्रोबेबली बी माई पाथ फॉरवर्ड. Yeah. And also, would you like to conclude with a message to those watching जो कि अपने sphere में who want to raise their voice or want to advocate for climate rights? Yeah, would you like to say anything? I think कि it depends partly कि आप किधर हैं. Yeah, that is true. I think अगर आप लाहौर में बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारी एयर पोल्यूशन के इतने मसाइल हैं, फॉर एग्जांपल, राइट, एंड एयर पोल्यूशन इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, लेकिन एनवायरमेंटल और क्लाइमेट के मसले वी हैव टू थिंक जी साथ साथ. तो आई थिंक ये बात है कि आप मतलब फॉर एग्जांपल किस तरह की गाड़ी चला रहे हैं, राइट, क्या आपका आई एम completely forgetting the word, but is your car up to date, right? Because ज़्यादातर जो हमारी vehicles हैं वो बहुत pollute करती हैं क्योंकि they're much older models, right? And इसके ऊपर regulation उस तरह नहीं है और जो है enforce नहीं होती, yes right? क्योंकि अगर होए enforce तो फिर that would make things more expensive, right? So what we need to do as humanity is find ways to make things more efficient and with less pollutants and also cheaper at the same time or the same cost. लेकिन अगर आप बस लाहौर में बैठे हुए हैं और आप स्टूडेंट हैं तो आप ये नहीं कर सकते obviously. So I think thinking about small things लेकिन also thinking about policy, क्योंकि अगर हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है अगर उनको ये फीलिंग आए कि लोग केयर नॉट जस्ट कि ओ आप क्लाइमेट चेंज का कुछ करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का तो बहुत कुछ हो रहा है, राइट, हमारे इतने इनिशिएटिव्स हैं जो अकॉम्प्लिश नहीं कर रहे, राइट, कुछ भी फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट, कि आप देखें अब फॉर एग्जांपल द बिलियन ट्री सुनामी वाज वेरी वेरी गुड, राइट, इट आल्सो डिडंट कॉस्ट इतना, बट there are all these other initiatives that we're doing जो are fundamentally for show क्योंकि इतने लोग केयर करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, लेकिन क्या लोग स्पेसिफिक पॉलिसीज़ के बारे में केयर करते हैं? क्या लोग क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर के बारे में केयर करते हैं, राइट? क्या लोग कि हमने जैसे काफ़ी मुल्कों में है एक लाहौर की फॉर एग्जांपल ग्रीन बेल्ट बनानी है, हम हर हाउसिंग सोसाइटीज़ को एक्सपैंड करें, हम ये सारे वो करें, लेकिन अगर हम नहीं करना है तो इसका मतलब ये कि लाहौर हैज़ टू बिकम मोर डेंस, इसका मतलब ये आपको ज़्यादा डेंसिटी चाहिए हाउसिंग में, तो डू पीपल केयर, लेकिन हमारी रेगुलेशंस जिस तरह की हैं डेंसिटी इज़ नॉट दैट ईजी टू अचीव, राइट, हमारी हाउसिंग रेगुलेशन वैसे भी यार बहुत रेड टेप है, फॉर एग्जाम्पल, डू पीपल केयर अबाउट दैट, डू पीपल केयर अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स, क्योंकि अभी ये इतनी ज़्यादा लार्ज यूथ है जिनको ये कंसर्न है क्लाइमेट चेंज के बारे में, लेकिन वैसे जो क्लाइमेट चेंज के बारे में कंसर्न है यूथ वो भी एक सेगमेंट है. There was a survey recently कि majority of people in Pakistan think कि climate change is real, लेकिन they think it is not man-made, it is a kind of punishment from God. That was I think it was like something like 54% or something.
Oh. Right, because obviously when we are in Lahore और आप comparatively middle class community में हो तो फिर it's completely different from what everyone else is saying. So I do think awareness में बात करने की ज़रूरत है. Awareness, yeah, that is the right word. But awareness specific चीज़ों की. ये awareness नहीं सिर्फ कि climate change हो रहा है. जी हमें पता है climate change हो रहा है. ठीक है. बार बार कह चुकी है. जी 10 साल पहले इस वक्त सितंबर में लाहौर का टेम्परेचर शायद इस तरह ना हो और 20 साल पहले और 30 साल पहले लाइक हमें ये चीज़ें पता हैं लेकिन क्यों हो रही है और क्या स्पेसिफिकली करना आई थिंक स्पेसिफिक्स के बारे में सोचना would be my thing. That is absolutely right. On that note, I would like to conclude our conversation. Thank you. आपने बहुत credible points raise किए. I think it's very important that we have such conversations and we continue to have them and we continue having this relationship जो आपने माटी के साथ establish किया है. And thank you. And thank you to everyone who watched this episode. अपने हमारे comment section में ज़रूर share कीजिएगा your thoughts. We would love to engage with you and do share it with your friends, with your family. अपना बहुत ख्याल रखिए. Like take care. Allah Hafiz.